ہیں کہ پورب کے شہزادوں میں کسی شہر کا بادشاہ زین الملوک نام، جمال اس کا جیسے ماہ منیر، عدل و انصاف اور شجاعت و سخاوت میں بے نظیر، اس کے 4 بیٹے تھے، ہر ایک علم و فضل میں علامہ زمان اور جوامردی میں رستم و دوراں، خدا کی قدرت کاملہ سے اور ایک بیٹا آفتاب کی طرح جہاں کا روشن کرنے والا اور 14ویں رات کے چاند کی طرح دنیا کے اندھیرے دور کرنے والا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے باغ باغ ہو کر جشن کیا اور نجومیوں کو بلا کر کہا کہ اس کی لگن دیکھو۔ ہر ایک نے کنڈلی کھینچ کر اس کا نام تاج الملوک رکھ دیا اور کچھ انگلیوں پر گن گنا کے عرض کی کہ یہ باغ عالم میں گل تازہ ہے، اس کے نصیبوں میں دولت دنیاوی بے اندازہ ہے، صاحب ہمت اس طرح کا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یقین ہے کہ ایسا شہریار ہو تو عالم جنات بھی مطیع اور فرما بردار ہوں، مگر ایک قباحت بھی اس کے ساتھ ہے، جب بادشاہ کے اس پر نظر پڑے تو فوراً بادشاہ کی آنکھوں سے بینائی جاتی رہے۔ بادشاہ نے کچھ شاد کچھ ناشاد ہو کر ان کو رخصت کیا اور وزیر سے فرمایا کہ ایک محل میں بتفاوت تمام ہماری گزرگاہ سے اس کی ماں سمیت رکھو۔ چنانچہ موجب ارشاد کے وزیر عمل میں لایا۔ چند سال کے بعد وہ نونہال باغ سلطنت کا کمال ناز و نعمت سے پرورش پا کر ہوائے علم و ہنر سے سرسبز ہوا۔ ایک روز اس کو شکار کی خواہش ہوئی، سوار ہو کر جنگل میں گیا اور شکار کے پیچھے گھوڑا اٹھایا۔ سچ ہے کہ ہونے والی بات بے ہوئی نہیں رہتی، تقدیر کے لکھے کو امکان نہیں دھوتا۔ اتفاقاً بادشاہ بھی اسی دن شکار کو سوار ہوئے تھے۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالے اسی طرف کو آ نکلے۔ مشہور ہے کہ کانے چوٹ کنوڈے بھینٹ، جو ہی شہزادے پر نگاہ پڑی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ ارکان دولت نے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ کے نابینا ہونے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ لازم یوں تھا کہ بیٹے کو دیکھ کر باپ کی آنکھیں اور روشن ہوں، سو یہ طرفہ ماجرا ہے کہ برعکس ظہور میں آیا۔ پس اب یہ بہتر ہے کہ اس کو میرے ممالک کے محروسہ سے نکال دو اور اس کی ماں کے واسطے خدمت جاروب گشی کی مقرر کرو۔ یہ فرما کر بادشاہ الٹے پاؤں تخت گاہ کی طرف پھر آیا اور اسے دل سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے حکیم، مسیحا، خصلت اور بو علی طبیب آنکھوں کے علاج کے لیے بلائے، سب نے متفق ہو کر عرض کی کہ بقاولی کے سوا کسی اور دوا سے ممکن نہیں کہ بادشاہ شفا پائے۔ اگر کسی صورت سے گل بقاولی پیدا ہو تو حضرت کیا بلکہ اندھا مادر زاد بھی آنکھیں پائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے تمام ملک میں منادی پھروا دی کہ جو گل بقاولی پیدا کرے یا اس کی خبر لائے تو اس کو بہت انعام و اکرام دے کر نہال کروں۔ اس طرح بادشاہ نے ایک مدت تک اس کے انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی آنکھوں کو سفید کیا اور اس غم میں مانند حضرت ایوب علیہ السلام کے آپ کو گھلا دیا۔ ہر چند کے خون جگر پیا لیکن کسی طرف سے بھی کچھ اس کا سراغ نہ ملا۔ ایک روز چاروں بیٹوں نے بادشاہ کی خدمت میں دست بستہ عرض کی کہ سعادت مند وہی لڑکا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت بجا لائے، اگر صحیح و کوشش میں جان دے تو وہ سعادت دارین پائے، اس واسطے ہم امیدوار ہیں۔ رخصت فرمائیے تو گل بقاولی کی تلاش کو نکلے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ایک تو آگے ہی میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہوں، نور چشم کو رو بیٹھا ہوں، وہ داغ اب تک جگر سے نہیں گیا جو چشم و چراغ ہے، ان کو برباد کس طرح ہونے دوں؟ یہ صدمہ دیدہ و دانستہ دل پر لوں۔ شہزادہ نے پھر مقرر عرض کی۔ تب چاروں ناچار بادشاہ نے رخصت دی اور وزیروں سے فرمایا کہ جو اسباب سفر کا چاہیے مہیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے باموجب حکم کے نقد و جنس و ادب و لشکر سے لے کر جتنا درکار تھا موجود کر دیا۔ تب بادشاہ سے رخصت ہو کر شہزادوں نے اپنا راستہ لیا۔ شہزادے منزل بمنزل جاتے تھے۔ اتفاقاً تاج الملوک کے جس کو باپ نے شہر بدر کیا تھا، دشت آوارگی کو قدم پریشانی سے ناپتے ناپتے ان سے دو چار ہوا۔ کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں جاتے ہیں؟ اس نے بادشاہ کے اندھے ہونے کا اور سب ان کے سفر کا گل بقاولی کی تلاش کے واسطے تاج الملوک سے بیان کیا۔ شہزادے نے دل میں کہا کہ اٹھ بخت کو تو بھی اب آزما۔ مصلحت نیک تو یہ ہے کہ میں بھی بھائیوں کے ہمراہ گل بقاولی کی جستجو کروں اور اپنے زر قسمت کو محق کے امتحان پر کسوں۔ اس میں اگر دامن کو گل مراد سے بھی بھروں تو فہو المراد، نہیں تو اس وسیلے سے باپ کے ملک سے باہر نکلوں۔ یہ دل میں ٹھان کر ایک سردار کے پاس کہ نام اس کا سعید تھا گیا اور باادب اسلام کیا۔ اس کی نظر جو شہزادے پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے گالوں کی چمک خورشید کی روشنی کی طرح برابری کر رہی ہے اور چاندسی پیشانی زلف شب رنگ کے پہلو میں ماہ تمام کی طرح جلوہ گر ہے۔ پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آنا ہوا؟ تاج الملوک نے عرض کی کہ میں بیچارہ غریب مسافر ہوں اور بے کس و آشفتہ خاطر ہوں، نہ کوئی غمگسار ہے کہ غمخواری کرے، نہ یار ہے کہ شرط یاری بجا لائے، نہ کوئی مددگار ہے کہ مددگاری کرے۔ سعید نے اس یوسف ثانی کی شیریں زبانی سے محظوظ ہو کر بضد آرزو و خواہش اپنی رفاقت میں رکھا اور ہر روز عنایت زیادہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ شہزادے ایک مدت کے بعد شہر فردوس میں کہ تخت نشین وہاں کا رضوان شاہ تھا پہنچے اور شام کے وقت دریا کے کنارے اس ارادے سے کہ چند روز یہاں ٹھہرے خیمے استادہ کیے۔ جب مسافر آفتاب ملک مغرب کی سیر کو گرم رفتار ہوا اور سیاہ مہتاب رات کے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف سے باغ اٹھا کر چلا، تب چاروں شہزادے اپنے اپنے سمند باد رفتار پر سوار ہو کر بطری کے سیر شہر میں آئے اور ادھر ادھر گشت کرنے لگے۔ اس میں ایک محل منقش اور مقلف کے جس کے جابجا دروازوں پر زردوزی کے پردے پڑے ہوئے تھے نظر آیا۔
वहां के बाशिंदों में से एक से पूछा कि यह मकान आलीशान किसका है। उसने जवाब दिया कि इसके मालिक दिलबर लखा बिस्वा है। शहजादों ने कहा, अल्लाह अकबर, ये महल बादशाही उसने कहां से पाया? वो शख्स फिर कहने लगा कि ये रंडी इस जमाने में यकता है और मलाहत में बेहिम्मता। शोरा आफाक अपने काम में ताक, रानाई और ज़ेबाई में नहायत दिलजू खूबी और दिलरुबाई में बागायत खूब और चश्मे खुर्शीद मदाम उसकी शमा जमाल पर परवाने की तरह शैदा और चेहरा माताबे दवाम उसके मुखड़े पे फिदा। किसी ने राह में उसके अगर कदम मारा तो अपनी अकल की फहरिस्त पे कलम मारा। उसने तज दिया नामूस वंग को अपने कि जिसने दुज़ा भी ख्वाहिश में इसके दम मारा। सामान्य मुबाशरत के वास्ते एक नकारा मुआचूब उसने अपने दरवाजे पर रखा है। जो कोई उसे जाकर बजाए वो अयारा ज़माने के उसे घर में बुलाए और लाख रुपए ले तब उससे मिले। शहजादे के अपने मालो दौलत पर निहायत मगरूर थे, नशाए बादाए नखुवत से चूर थे। निशान हिम्मत उसके मैदानी शौक में बुलंद करके दरवाजे पर गए और जाते ही बेतहाशा नकारा बजा दिया। सुनते ही उस मकारा दौरा ने दिल में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुद्दत मदीद के बाद किसी ऐसे नेक बख्त ने मेरे घर का कसद किया। चाहिए कि मेरे हुजरे को रोशन करे और ऐसे मोटे ताज़े शिकार ने मेरे जाल में आने का इरादा किया। अगलब है कि दाम में फंसे फड़क फड़क कर मरे। नकल मशहूर है कि ये ताइफा उसी तरद्दुद में रहता है कि कोई अकल का अंदा गांठ का पूरा मिले। सो खुदा ने वैसे ही शख्स भेज दिए। झटपट बनाओ संगार करके जेवर मुरस्सा लाल मोती हीरा जमुर्द जाबजा मौके से पहनकर बड़ी यान बान से बन ठन कर बैठी। ये भी उसमें आ पहुंचे। चंद कदम इस्तकबाल करके हर एक को सोने की कुर्सी पर बैठाया। इतने में कुछ रात गई कि साकियाने गुल अजरा शीशा शराब और सागे जर निगार लिए हजूर में आए और जाम को गर्दिश में लाए। इसी तरह आध रात गई तब उस सयार ने कहा कि अगर इजाजत हो तो तख्ता नर्द मंगवाऊं, बाकी रात उस शुगल में बसर हो के सहर हो। शहजादों ने कहा कि मंगवाओ, इससे क्या बेहतर। मकारा ने एक बिल्ली के सर पर चराग रखा और लाख रुपए की बांदी बद कर खेलने लगी। लेकिन वाली ने यूं लिखा है कि शहजादों ने इस आधी रात के अरसे में 50 लाख रुपए हारे। इसमें खुर्शीद गर्दों जमर्दी तख्ते पर नमूदार हुआ और सिमी मोहरा माह अपने घर गया। इस मकरहाई ने भी बसात बाजी लपेटी। शहजादे अपने मकानों को गए। दूसरे रोज जब आफताब सियाहों की तरह मगरिब की मंजिल में पहुंचा और माताब बादशाहों की सूरत सिपाही अंजम को लिए तख्ते फिरोजा और रंग पर रौनक बख्श हुआ, शहजादे उसी आन बान से उसके मकान में आए और बदस्तूर सोने की चौकियों पर इजलास फरमाया। वो लका लौंडियां खिदमत में आकर हाजिर हुई और तरह तरह का खाना सोने चांदी के खानों में लाकर दस्तरखानों पर चुन दिया। बादे तनावल ताम तख्ता नर्द मंगवाकर 10 लाख रुपए की बाजी बद कर खेलने लगे। गर्ज उस रात को सब मालो मता नकद जिन्स हाथी घोड़े ऊंट वगैरह जिस कदर के रखे थे हार गए। तब उस मकारा ने बाजी से हाथ खींचकर कहा, ए जवानों, तुम्हारा सरमाया आखिर हो चुका है, अब बसात बाजी लपेटो, अपने घर की राह लो। शहजादों ने कहा कि अब की बार हम जरे ताला को तराजुए इम्तिहान में तोले। अगर हमारे बख्त का पल्ला झुके तो अपनी हारी हुई सब नकदो जिन्स के ग्रोह में तूने बांधी है खोल ले, नहीं तो हम चारों तेरे फर्माबरदार हैं, गुलाम होकर रहे, कुछ न बोले। जब ये कौलो करार ठहरा तब उस उछाल छक्का ने तुरफतुल ऐन में वो भी बाजी जीत ली और बहुत असबाब नकदो जिन्स अपनी सरकार में दाखिल किया। उनको कैदियों के सिलसिले में कि वैसे सैकड़ों थे भेज दिया। लश्कर और सिपाह और रफीक उनके गुले खजां दीदा के पत्तों की तरह दरहम बरहम हो गए। ताजुल मलूक ने दिल से मसलहत की कि अब कुछ ऐसी हिकमत क्या चाहिए जो उनकी खलासी का सबब हो। मुझसे जो ये काम नुमाया हो, दुनिया में नाम हो, आखिरत में अजर फरवाह हो। ये दिल में सोचकर शहर में आ एक अमीर के दरे दौलत पर जाकर दरबानों से कहा, मुसाफिर हूँ बेखानमा, किसी कदरदां अमीर को ढूंढता हूँ। तुम्हारे साहिब के औसाफ हमीदा और अखलाक पसंदीदा सुनकर आप हूँ। अगर बंदे को अपनी बंदगी में लें और बंदा नवाजी फरमाए, बदिलो जान खिदमत बजा लाऊं। उनमें से एक ने जाकर अमीर की खिदमत में शहजादे की ये कैफियत बयान की। फरमाया, उसे हाजिर कर। वो ले गया। अमीर ने उसके मुंह को देखकर कहा, या इलाही, क्या आफ्ताब चौथे आसमान से इंसान के कालिब में आया या कोई गुलमाने बहिश्ते बनी से? पेशानी नाज़नीन पे इसके चमके था सितारा बुलंदी। गर्ज के अमीर ने उसको अपनी खिदमत में सरफराज किया। जब ताजुल मलूक को अमीर खिदमत में कई महीने गुजर गए और उसने वजह मुकर्ररा से कुछ रुपए जमा किए तो एक रोज उसकी खिदमत में अर्ज की कि एक विधवी की आशनाओं में इस शहर में ताज़ा वारिद है, अगर हुक्म हो तो हर रोज 4 घड़ी के वास्ते उसके पास जाया करूं, दिल बहलाया करूं। अमीर ने कहा, बेहतर। बस शहजादा हर रोज तख्ता नर्द खेलने वालों के पास जा बैठता और खेलता। जब कानून उसके दरियाफ्त कर लिए और हर एक से बाजी हाथ आने लगी तो ये तजवीज़ किया कि अब इस अय्यारा से खेलने और अपने ताले के कुरा को तख्ता इम्तिहान पर फेंक कर खुदा की कुदरत का तमाशा देखिए कि पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। फिर एक रोज शहजादा उसके दरवाजे पर गया। देखा कि एक बुढ़िया अंदर से बाहर आती है। किसी से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, यहाँ की यही मदारुल महाम है। बेमशवरा उसके वो कुछ काम नहीं करती है। ताजुल मलूक ने दिल से कहा कि अब कुछ मकर फैलाया चाहिए, दामे मोहब्बत में इसको लाया चाहिए। उसके हाथ मेरा काम निकले तो निकले। उस दिन तो शहजादा वो चला आया। फिर एक रोज वही बुढ़िया उसको दिखाई दी, सलाम किया और पांव पर सर रखकर बेइख्तियार रोने लगा।
बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है और कहां से आया है, मगर दीवाना है या मजलूम के इस तरह बूट कर रोता है? शहजादे ने कहा, क्या मुझसे पूछती हूँ? मैं हूं कमाल मुस्तर, दुनिया में कोई मुझसे ढूंढो तो पाओ कमतर, आतिश से गम की मेरा सीना जला भुना है, 2 दिन की जिंदगानी मुझ पर अजीब बला है, गर्दिश से आसमान की क्या क्या सितम है मुझ पर, साया बगैर अपना साथी न दूसरा है, मुसाफिर हूँ बेसरुपा इस शहर गाना में, न कोई यार न आशना, बदुस बारी ताला की जात के ना अपना कोई पुश्त पना, न कोई किसी का आसरा, पूरब देश में मेरा वतन है, एक मेरी दादी थी, वो भी कज़ा इलाही से कई बरस हुए कि इस आलम फना से मुल्क के बका को कूच कर गई, इसके तमाम आसार तुझ में पाए, इस वास्ते बसद आरजू तेरी पाबूसी की, अगर मेरे हाले जार को अल्ताफ की नज़र से तो देखिए, और इस आजिज की गरीबी और बेकसी पर रहम फरमाइए, तो मैं तेरा होकर रहूंगा और दादी की जगह तुझको तसव्वुर करूं, नज़र से अपनी जो करते हैं खाक को अक्सीर, कभी तो गोशाए चशम उस तरफ करें अल्लाह। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की कि इस पीर जाल का दिल फिसल गया, बल्कि शोलाए आवाज से मोम की मानद पिघल गया। बोली कि ऐ जवान, मेरा भी इस जहां में कोई नहीं रहा, आज से मैं तेरी दादी, तू मेरा पोता। फिर ताजुल मुल्क ने कहा, दादी साहब, कई रोज से मैं एक जगह नौकर हूँ, उसकी फरमाबरदारी लाजिम है, हर रोज तुम्हारी कदम बोसी के बाद से ना पहुंच सकूंगा, मगर कभी कभी। बुढ़िया ने कहा, बेटा क्या मुजायका है? अगरचे शहजादे ने हर रोज के आने का उज़र किया, लेकिन मदाम इस गमखार के घर जाता और चापलूसी और तमलक की बातें बनाता, आखिरश रफ्ता रफ्ता इसका महरम राज हुआ। इसी तरह से कुछ रोज गुजरे। एक दिन शहजादा कुछ रुपए इसके पास ले गया और कहा, दादी साहब, ये रुपए रख छोड़ो, अगर किसी काम में दरकार हो तो खर्च करो। वो बोली, बेटा तेरे रुपए मैं लेकर क्या करूंगी, खुदा का दिया मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, अगर तुझे किसी काम के लिए कुछ दरकार हो तो ये नक तो जिन्स तेरा है। बेविश्वास अपने तसर्रुफ में ला। गर्ज शहजादे ने जब उसको बेहाल पर मेहरबान पाया, एक रोज इधर उधर का तज़किरा करके कहने लगा कि ए दादी साहिब, तुमको कुछ मालूम है कि जो कोई इस अयारनी के साथ तख्ता नद खेलता है उससे बाजी नहीं पाता? उसने जवाब दिया, बेटा ये राज बहुत नाजुक है, खबरदार हरगिज किसी से ना कहो, ऐसा ना हो कि ये बात तश्ते असबाम हो, अगर इसकी भनक उस खाम पारा के कान में पहुंचे तो मेरे जवाल का बायस हो। शहजादे ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात है? बुढ़िया बोली कि उसने एक बिल्ली और चूहे को परवरिश करके ये सिखाया है कि बिल्ली के सर पर चिराग रखे तो वो लिए रहे और चूहा चिराग के साए बैठा रहे, जब उसके खातिर खा पांसा ना पड़े तब बिल्ली चिराग को हिलाकर नर्दों पर साया करे और चूहा पांसे को उसके हस्बे दिल खा उलट दे। बस जो कोई इसे खेलने आता है वो बेचारा बाजी हार जाता है और ये बिल्ली चूहे की मदद से बाजी जीत लेती है, लेकिन किसी खिलाड़ी पे ये भेद आज तक नहीं खुला और जो कोई इस इरादे पर आया उसने दाग नदामत का अपनी पेशानी पर खाया। ताजुल मुल्क जब ये बात दरियाफ्त कर चुका, बाजार में गया और एक नेवले का बच्चा मोल लेकर उसे आस्तीन में रखकर ये सिखाने लगा कि जो ही वो चुटकी की आवाज पाए वहीं बच्चा परंग की तरह आस्तीन से कूदकर बाहर आ जाए। जब इस तरह सीख सिखाकर वो ताक हुआ, तब एक रोज शहजादे ने बुढ़िया से ये मकर फहराया कि मैं अब इस नौकरी से उदास हुआ हूँ, अगर तू 1000 रुपए से मेरी मदद करे तो तजारत करूं। बुढ़िया ने कोठड़ी में ले जाकर कहा कि देख बेटा, ये सब तोड़े हाजिर हैं, जितना जी चाहे उतना ले ले। तब शहजादा 1000 रुपए इससे लेकर अमीर की खिदमत में गया और अर्ज की कि मेरे आशनाओं में से एक शख्स का आज ब्याह है, अगर सरकार से एक गलत फिदवी को मरहमत हो तो इस मजलिस में जाए, हम चश्मों में इज्जत पाए। अमीर ने अपना मलबूस खास शहजादे को इनायत किया और फरमाया कि घोड़ों में से जो भी तेरे पसंद हो ले जा। तब ताजुल मुल्क हजूर के खासे पर सवार होकर उस बिस्वा के दरवाजे पर गया और घोड़े से उतरकर बेबाकाना कदम अंदर रखा। उसके हैयत से उसके मुंह का रंग उड़ गया, घबराई और इस्तकबाल के लिए दौड़ी आई। शहजादा ने कहा कि तू एक मुद्दत से इस शहर में मुसाफिर की दमसाजी रहती है और आशिक मिजाजों की हमराज रहती है और मैं कि इस शहर के वाली का खास हूँ, कभी मुझसे रजू नहीं होती, बहरहाल ला कुछ तोहफा यारों की भी नजर कर। उसने शहजादा को बाएजाज तमाम चढ़ाव कुर्सी पर बैठाया और आप हटकर पीछे बैठी। इसमें शातिर फलक कजबाज ने इक्तशाफ के सुनहरे नर्द को मगरिब के घर में छुपाया और फरकदान की रूह पहली गोटों को तख्ता तल्लू पर बैठाया। शहजादे ने कहा, मैंने सुना है कि तुझको नर्द खेलने का बड़ा शौक है, आ एक बाजी खेले। उस मकरहाई ने पहले तो इनकार किया, आखिर शहजादे के कहने से तख्ता नर्द मंगवाकर बदस्तूर कदीम बिल्ली के सर पर चिराग रखा और लाख रुपए की बाजी बदकर पांसा फेंक दिया। पहली बाजी तो शहजादे ने जानबूझकर हार दी और उसने बिल्ली चूहे की मदद से जीत ली। फिर दूसरी बाजी रखकर खेलने बैठी, जो एक पांसा उसकी खातिर ना पड़ा तो वहीं बिल्ली ने सर हिलाया। चूहे ने चाहा कि पांसे को उलट दे। ताजुल मुल्क ने चुटकी बजाई, न्योला बच्चा पलंग की तरह डिस्त करके आस्तीन से बाहर निकला। चूहा तो उसकी सूरत देखने ही काफूर हो गया और बिल्ली पर भी दहशत गालिब हुई। चिराग सर से फेंक कर हवा हुई। शहजादे ने बरहम होकर कहा, ए अयारनी, तूने क्या बगल निकाला है? बावजूद ये कि तेरे घर गौहर शबो चराग तक है, एक शमादान भी नहीं रखती है। वो इस गुफ्तगू से निहायत खज्जल हुई, गैरत से पसीने पसीने हुई। उस वक्त जड़ाऊ शमादान मंगवा कर रखा और दोनों फिर इसी काम में मशगूल हुए। कहने वाले ने यूं कहा है कि शहजादे ने उसी रात में 7 करोड़ रुपए जीते। इसमें सुबह सादिक हो गई। ताजुल मुल्क ने कहा
कि अब हजरत जहां पनाह के नाश्ते का वक्त करीब आ पहुंचा है। अगर इस वक्त मैं हजूर में हाजिर ना हो सका तो मौजब कबाहत होगा। ये कहकर उठ खड़ा हुआ और वो रुपए शाम के वादे पर उसके पास छोड़कर अमीर की खिदमत में आकर हाजिर हुआ। शाम के इंतजार में तमाम दिन जूं का तूं काटा। सूरज के डूबते ही सज सजा के एक ऐसे घोड़े बादे रफ्तार पर कि जिसकी जल्दी से बादे सबा भी हर दम दमे सर्द भरती थी, सवार होकर उसके घर पहुंचा। यह खबर सुनकर उसने चंद कदम चार नाचार इस्तकबाल किया और शहजादे को बदस्तूर कुर्सी पर लाकर बैठाया। खाना खाने के बाद करोड़ों रुपए की बाजी बदकर खेलने लगी। कहते हैं कि इस खिलाड़न ने आधी रात के अरसे में करीब 100 करोड़ के जो उसके खजाने में थे हार दिए। तब शशदर होकर शशोपंज करने लगी। आखिर असासुल बैत की नौबत पहुंची। वो भी ताजुल मलूक के हाथों हाथ लगा। फिर उसने कहा, अब तेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। इतनी रात किस शुगल से कटेगी? अब पूर्व और पश्चिम के शहजादे जो तूने कैद किए हैं, इन पर भी एक बाजी खेल। अगर तू जीती तो लाख रुपए मैं दूं, नहीं इनको भी ले लूं और जो चाहूं सो करूं। इस बात पर वो राजी हुई। पलक मारते शहजादे ने वो भी बाजी जीत ली। तब वो बोली, ऐ जवां बख्त, एक बार और मैं अपना नसीब आजमाऊं। अगर ये बाजी मेरे हाथ आई तो अपनी सब जिन्स हारी हुई तुझसे फिर लूं, नहीं तो तेरी लौंडी होकर रहूं। शहजादे के ताले का सितारा आसमान तरक्की पर चमक रहा था। बात की बात में वो भी बाजी जीत ली। तब वो सरोकद उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी, ऐ जवान, खुदा की मदद से तूने मुझे अपनी लौंडियों में मिलाया। गर्ज के जिस शिकार के वास्ते सारी जमीन के बादशाहों ने तमाम उम्र सरफ की, बख्त बुलंद की मदद से उसको तूने हाथों हाथ पकड़ लिया। अब ये तेरा घर है, मुझको अपने निकाह में ला और बाकी उम्र दौलत और हशमत के साथ यहीं बसर किए जा। ताजुल मलूक ने कहा, यह मुझसे ना हो सकेगा, मुझे एक बड़ी मुहिम दरपेश है। अगर हक ताला के फजलो करम से इस पर फतेह याब हुआ तो अलबत्ता तू भी कामयाब होगी। अब तुझे लाजिम है कि 12 बरस तक मेरे इंतजार में नेक बख्ती का लिबास पहनकर हक ताला की इबादत में मशगूल रहे और अपने कसब से हाथ उठाए। उसने कहा, ऐ बूस्तान सरदारी के नौनिहाल, अब तक तेरी जवानी का शगुफा नहीं फूला और बहार शबाब के चिमनों पर सरसर का झोंका भी नहीं लगा। क्या लाजिम है कि तू सफर करके आतिश का दाए मेहनत में आमदन आपको गिराए और आतिश सरगर्दानी कसरे शादमानी में कसदन लगाए? मुझको भी इस कैफियत से मुतला करके मैं भी तेरे साथ जब तक मेरे कालिब में जान है और मुहिम सर न हो सही तरद्दुद करूं, क्या मुझको तेरे बगैर ये घरबंदी खाना है? जब उस सलामा ने इस राज सरबस्ता के खोलने में हद से ज्यादा मुबारका किया तब शहजादे ने कहा, सुन, मेरा नाम ताजुल मलूक है और जैनुल मलूक शर्कस्तान के बादशाह का बेटा हूँ। कज़ाएकार मेरे बाप की आंखें जाती रहीं। हकीमों और तबीबों ने बिला इत्तफाक गुल बकौली के सिवा और कोई दवा तजवीज़ नहीं की। उसी रोज से मेरे 4 भाई जो चंद रोज से तेरी कैद में हैं गुले मज़कूर की तलाश को निकले हैं। मैं भी खुफिया इनके साथ था, वो तो तेरे मकरो फरेब के दाम में फंस गए हैं। मैं सैकड़ों हीलों से तुझ तक पहुंचा और गालिब हुआ, अब उसी की तलाश में जाता हूं। अगर गुले मकसूद हाथ आया तो खैर, नहीं तो इसके पीछे जान ले कि मैंने अपनी जान से हाथ उठाया। उसने सुनकर कहा, ऐ शहजादे, ये क्या ख्याल बातिल तेरे दिल में समाया और इंदा शैफासत तेरे जी में आया? जरा को क्या मजाल के अपने को आफताब की मंजिल तक पहुंचाए? परिंदे को क्या ताकत आपको हमदम सबा बनाए? सुन, बकौली परियों की बादशाह की बेटी है, उसके बाग में वो गुल है और उसके 4 दीवारी को आफताब भी नजर उठा के नहीं देख सकता। हजारों देव उसकी निगहबानी के वास्ते चारों तरफ मुस्तैद रहते हैं। किसी जी रूह को ताकत नहीं कि बे इजाजत उनके वहां तक पहुंचे और बेशुमार परियां पासबानी के वास्ते हवा पर मुकर्रर हैं कि कोई परिंदा पर न मार सके। उसके सिवा जमीन पर सांप बिच्छू बे इंतहा पहरा चौकी देते हैं कि कोई शख्स किसी रास्ते भी उस तक न पहुंच सके। और जमीन के पीछे चूहों का बादशाह हजारों चूहों के साथ रात दिन निगहबानी करता है कि सुरंग की राह से भी किसी की रसाई ना हो। सच तो यह है कि चूंटी चाहे कि रेंगती हुई किसी हीले से उस तक पहुंचे, मुमकिन नहीं। ऐ शहजादे, तो इस खराबी में ज़नाहार गिरफ्तार ना हो। कुरान शरीफ में है कि न डालो तुम हाथ हलाकत की तरफ, और सादी शहराजी ने भी फरमाया है कि जिसका तर्जमा है, कोई मरता नहीं है बेनाए लेकिन तू मुंह में अजदहे के न जा। शहजादी ने कहा कि फिल हकीकत यही बात है, मगर हक ताला ने अपनी मेहरबानी से खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर आग को गुलजार किया था। अगर मैं आशिक साबित कदम हूं और मेरे इश्क का जज्बा सादक है तो अलबत्ता शाहिद मुराद के दामन तक मेरा दस्तरास होगा। क्या कर सके है दुश्मन जो दोस्त मेहरबान हो। मेरे छोटे से कद पे न जा, अगरचे बनी आदम कुव्वत में द्यो से कमतर है लेकिन फहम फरासत में ज्यादातर है। चनाचे हक ताला ने फरमाया है कि हर आईना बुजुर्गी दी है मैंने बनी आदम को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली किस्त आपको आसानी